Hi, myself, Dr. Milan. Today we will continue our discussion of endocrinology with hyperpituitism. है ना? Last lecture में we discussed pan-hypopituitism, in which we discussed like Sheehan syndrome. आज वाले lecture में we will discuss hyperpituitism. है ना? Hyperpituitism मतलब पिट्यूटरी ओवर एक्टिव हो रही है। ओवर एक्टिव पिट्यूटरी के देखो दो कॉज होते हैं, इट में भी माइक्रो एडिनोमा, इट में भी मैक्रो एडिनोमा, और इट में भी फंक्शनल और इट में भी नॉन फंक्शनल। जब आप हाइपरपिट्यूटिज्म की बात करो, इसका मतलब फंक्शनल ट्यूमर है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो तो देखो प्रोलैक्टिनोमा होता है, और उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अपने सेकंड मोस्ट कॉमन एक्रोमीगली, दैट इज इंक्रीज सोमैटोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको एक्रोमीगैली की क्लिनिकल पिक्चर समझा देता हूँ। क्या आप इन्वेस्टिगेट करोगे, क्या ट्रीट करोगे, एक समरी में बता देता हूँ, देन आई विल डिस्कस इट इन थॉरोली। ठीक है, सो आई होप लाइक वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। अगर किसी को भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, प्लीज डू मैसेज मी, जस्ट गिव ए थम्स अप इफ ऑल इज फाइन। सो देखो, एक 50 ईयर ओल्ड मेल आपके पास आता है ओपीडी में। वो ऑलमोस्ट अब तक 10 फिजिशियन को दिखा चुका है, एंड ही इज हैविंग वेग कंप्लेंट्स, लाइक ही इज हैविंग एक्सेसिव स्वेटिंग। his thyroid profile is normal, even though he's having excessive sweating. His shoe and his ring size are increasing. His head size is also increasing. Or he has been diagnosed with diabetes type 2 recently in 3 4 years, and his hypertension is not controlled even though he has consulted many physicians. His BP is not under control even though he is on 3 medication, that is he is having resistant hypertension. Also, that patient complains of erectile dysfunction that was not there for like 2 to 3 years ago. He was having a good sexual life, but he is complaining of erectile dysfunction as well as decreased libido, not only erectile dysfunction, that is ED. So, this is, I have given a classical case scenario of acromegaly in which there is increased surge of the growth hormone, and the growth hormone causes this multisystem disorder. So, spot diagnosis is acromegaly. They have like protruded jaw. You have all watched sometimes WWE, in which the great Khali, the Indian wrestler, is also suffering from that. And if you have watched old Hollywood movies, you might have heard of Andre the Giant. That was like one of the famous case of acromegaly. Another one, if you are a like fan of bodybuilding or into gym, you might have heard of Chris Bumstead. Like, that is not a patient of acromegaly, but probably he's been injecting himself for he's injecting himself growth hormone for over the years because of for the bodybuilding. So like, you can watch Chris Bumstead videos, you can see his protruded jaw, you can see his macroglossia, and you, if you will watch his interviews 4 years back, like, he was so handsome, he's like a supermodel, and his speech was normal. But now you will see his interviews, his speech, you can easily uh, just spot on say here it is macroglossia, because there is very coarse and hollow voice. So these are the cases of acromegaly, and the investigation of choice and the first investigation are different. The first investigation is that is IGF-1 levels, because growth hormone खुद पिट्यूटरी से निकलता है और नीचे जाके लिवर को स्टिमुलेट करता है, और लिवर IGF-1 रिलीज करता है, जिसके कारण बोन, शुगर और अपने मसल के अंदर चेंजेस आते हैं। तो IGF-1 लेवल का जो होता है, इसकी हाफ लाइफ 24 आवर्स होती है, लॉन्ग, और ये एक स्टेबल एनवायरनमेंट में रहता है अपनी बॉडी के अंदर, इसलिए इसका लेवल ज़्यादा रिलायबल होता है। स्पॉट ऑन ग्रोथ हार्मोन आप कभी नहीं कराते, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन एंड ऑल पिट्यूटरी हार्मोन्स आर पल्सेटाइल हार्मोन, एक्सेप्ट, कोई भी बंदा इस चैट में बताओ ऐसा पिट्यूटरी हार्मोन जो पल्सेटाइल नहीं है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो, ऐसा पिट्यूटरी हार्मोन जो पल्सेटाइल नहीं है, कोई भी बताओ यार, कोई तुक्का ही मार लो, ऐसा मत करो।
जैसे मत करो यार, डर मत हो सारे, इतने दिनों बाद आए हो, बढ़िया लग रहा है। कुछ तो बताओ। देखो इसको ऐसे ध्यान रखो, प्रोलैक्टिन इज अ पल्सेटाइल हार्मोन, है ना। प्रोलैक्टिन 24 घंटे से क्रिएट होता है, तो ऑल मेल्स वुड हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड ऑल फीमेल्स वुड हैव गैलेक्टोरिया 24/7। ठीक है, सो इट इज नॉट secreted 24/7. The answer is thyroid hormone because simply understand, ऐसा नहीं होता कि आप 3 घंटे तक आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है और फिर 2 घंटे तक बिल्कुल मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा, या रात को बिल्कुल मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा। योर बॉडी इज ए किचन दैट इज वर्किंग 24/7, तो इसका मेटाबॉलिज्म 24 घंटे चलता है। तो थायराइड हार्मोन इज द ओनली हार्मोन दैट इज नॉन पल्सेटाइल। इसीलिए आपने देखा होगा, यू माइट हैव, like even at your level you might have prescribed someone कि get a thyroid हार्मोन डन। आपने नहीं बोला होगा कि खाने के बाद कराओ या सुबह खाली पेट कराओ, 8 AM कराओ या नाइट में 12 PM कराओ। यू नेवर हैव डन दिस। व्हाई? बिकॉज ग्रोथ थायराइड हार्मोन का लेवल 24/7 एक कंटिन्यूअस लेवल में रहता है। टीएसएच इज नॉट ए पल्सेटाइल हार्मोन। लेकिन आप सब ने कॉर्टिसोल बोला होगा, 8 AM कराओ, एसीटीएच का स्टिमुलेशन टेस्ट कराओ, ग्रोथ हार्मोन को ग्लूकोज खाने के बाद कराओ या हाइपोग्लाइसीमिया के बाद कराओ। So that is the difference. So most of the pituitary hormone except थायराइड हार्मोन और पल्सेटाइल हार्मोन, तो आप क्या करते हो कि IGF-1 लेवल्स कराते हो। इफ दे आर रेज देन यू गो फॉर डायग्नोसिस ऑफ चॉइस और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दैट इज योर growth hormone suppression test via oral glucose tolerance test. I will describe you that later. और फाइनली अगर आपको लगता है बायोकेमिकली प्रूव हो चुका है, देन यू विल गो फॉर MRI ब्रेन इन विच यू विल फाइंड अ मैक्रोएडिनोमा दैट इज मोर देन 1 centimeter मास। सो दिस इज लाइक ब्रीफ सिनेरियो। और ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे? सर्जिकल रिसेक्शन इज द ट्रीटमेंट, बिकॉज कोई भी हार्मोन की अगर अमाउंट ज्यादा है ना, एक्सेप्ट प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हैज ए वेरी वेरी गुड रिजल्ट विद ब्रोमोक्रिप्टन एंड कैबरगोलिन, but like a Cushing's disease patient or a acromegaly patient needs surgery, because these are the hormones that have multi-system disorder causing your body to degrade day by day, causing severe deterioration and death eventually. So you will always try to remove the ultimate source of the disease, that is tumor itself. So these are benign tumor, but they are functional. Malignant tumors are not functional usually, unless it is a case of आई फॉरगॉट दैट नेम यार, क्लासिकल आप बोलते हो, जहाँ एक ट्यूमर किसी और जगह गया लेकिन वो दूसरा हार्मोन रिलीज कर रहा होता है ना। इफ एनीबडी नोज यार, वो टाइप कर दो, पता नहीं कैसे माइंड से स्किप हो रहा है। तो दिस इज जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, बिल्कुल सही विषय की बात नहीं, ठीक है। तो except those things, tumors are usually non-functional. So now we will discuss in thoroughly what is acromegaly, what is the cause. So the most common cause of acromegaly is pituitary macroadenoma. ये most common cause है, आपको spot on नहीं ध्यान रखना, लेकिन कुछ extra points आपके level पे आपको आने चाहिए कि क्या पिट्यूटरी के अलावा भी कोई ग्रोथ हार्मोन बना सकता है? हाँ, बना सकता है। कौन बनाता है? आइलेट सेल ट्यूमर, पेनक्रेटिक एडिनोमा अगर होता है, इट समटाइम्स सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन लेवल्स। अनदर वन इज ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा नहीं बोलना प्लीज। हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा कॉजेज जिलास्टिक सीजन, मतलब ऐसा सीजन जिसमें बॉडी वाइब्रेट नहीं हो रही है, पेशेंट हंस रहा है, क्योंकि जो लाफिंग सेंटर होता है सिर्फ वो ज्यादा स्टिमुलेट होता है, बॉडी के मस्कुलर सेंटर स्टिमुलेट नहीं होते, तो पेशेंट सिर्फ लाफ करता है, अनकंट्रोलेबल विदाउट एनी कॉज लाफ करता है, और दे टर्मिनेट देम। वो हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा का एग्जांपल है। दे आर नॉट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ GHRS स्टिमुलेटिंग ट्यूमर्स। द मोस्ट कॉमन कॉज इज कार्सिनोइड सिंड्रोम। यार एक बार जस्ट गिव ए थम्स अप, किसी को वॉइस लो तो नहीं लग रही कि इज इट लाउड इनफ, इज इट क्लियर इनफ, है ना। इफ यू आर फीलिंग दैट वॉइस इज लो, तो मैं एम्पलीट्यूड अपना बढ़ाऊं, या तो थम्स अप दे दो या चैट में टाइप कर दो, सो दैट आई कैन कंटिन्यू फॉरवर्ड। यार बता दो यार फटाफट। ठीक है, इनफ है, ठीक है। लाउडनेस अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो प्लीज़ बता देना, ठीक है।
और सो दिस इज कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम क्या होता है? सेरोटोनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, और सेरोटोनिन क्या करता है, हर जगह वेजोडाइलेशन कराता है। तो मेरे बॉडी में वेजोडाइलेशन कराएगा, इट विल कॉज फ्लशिंग एंड इचिंग थ्रू आउट माई बॉडी, and in the bronchus it will cause bronchospasm because of release of serotonin and along with other vasodilators. So it will cause bronchospasm, and in my gut it will cause, due to vasodilation there will be release of water and ions, it will cause diarrhea. So diarrhea, flushing and bronchospasm, these are the classic triad of carcinoid syndrome. A separate question बता रहा हूँ क्योंकि it is overlap of surgery and medicine. You must know this, what is the diagnosis of carcinoid syndrome. Anybody in the chat, what is the treatment of carcinoid syndrome? बताओ यार कोई तो। The treatment is octreotide, you somatostatin. Basically somato का मतलब बॉडी, स्टैटिन का मतलब इनिबिट करना। तो ऐसा हार्मोन जो बॉडी को इनिबिट करता है, तो गट के हार्मोन्स को, सभी हार्मोन्स को इनिबिट कर देता है सोमेटोस्टेटिन। और कार्सिनोइड कॉमनली गट से राइज होता है। अदर थिंग्स आर ब्रोंकियल कार्सिनोइड और अपेंडिक्स कार्सिनोइड। तो आप क्या करते हो, उस हार्मोन को इनिबिट करने के लिए, उस ट्यूमर को इनिबिट करने के लिए ऑक्ट्रेओटाइड देते हो। सर्जिकल रिसेक्शन इज द ऑलवेज ऑप्शन। So these are the causes of acromegaly, in which देखो जो आपके लेवल पे सबसे मोस्ट कॉमन कॉज इज पिट्यूटरी ट्यूमर, दैट इज मैक्रोएडिनोमा itself. अब साइन एंड सिम्टम समझो। देखो पिट्यूटरी का हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो इट कॉजेज ग्रोथ, और कॉजेज, इट कॉजेज ग्रोथ ऑफ बोन, इट कॉजेज ग्रोथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, इट कॉजेज ग्रोथ ऑफ विसरल ऑर्गन्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सब जगह साइज बढ़ रहा है। The thing difference between, like, raise your hands if anybody in your lifetime has seen gigantism. You might have seen acromegaly, but have you ever seen gigantism in real life, face to face? See, probably you might not have seen cases of gigantism, because gigantism is growth hormone increasing before puberty, while acromegaly is growth hormone increasing after puberty. तो एक्रोमेगेली में पेशेंट की हाइट नहीं बढ़ती है। देखो अपने जो हर्ट की जो एकदम से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे हर्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसका जो शूट करने का आर्टीरियल ब्लड, आर्टीरियल स्ट्री के अंदर ब्लड शूट करने का एक मैक्सिमम हाइट होती है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन आपका प्यूबर्टी से पहले बढ़ता है तो आपकी हाइट एक्सेप्शनली बढ़ जाती है, 8 फुट तक हो जाता है, 7 फुट, 8 फुट। तो देखो ये मेरा बेचारा दिल है, अब दिल लेंथ में तो नहीं बढ़ रहा, साइज में तो नहीं बढ़ रहा, इट विल कॉज ओनली हाइपरट्रॉफिक रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो क्या होता है, वो दिल जो पहले 5 फुट के इंसान को सप्लाई कर रहा था, अब उसको 7 फुट, 8 फुट के इंसान को सप्लाई करना है। Patient eventually die of heart failure at the age of 20 years or a light age of 18 years. That is why you don't see gigantism very commonly. It is very, very few cases reported throughout the world. Acromegaly is common because acromegaly क्या हुआ कि now all your metaphyses are fused after puberty. तो जो पेशेंट की हाइट है वो वर्टिकली नहीं बढ़ेगी। अब बोन वर्टिकली नहीं बढ़ पा रही है तो वो क्या करेगी, हॉरिजॉन्टली बढ़ेगी, मतलब थिकनेस में बढ़ेगी बोन। और बोन थिकनेस में बढ़ेगी तो इट विल कॉज प्रोट्रूजन ऑफ योर जॉ। तो जॉ का प्रोट्रूजन हो जाएगा। आप खली के जॉ को देख सकते हो, क्रिस बम्स्टेड के जॉ को देख सकते हो, दे आर प्रोट्रूडेड जॉ, है ना। मैंने फोटोज भी डाली हुई उनकी बिफोर एंड आफ्टर, यू कैन आल्सो सी। Also, their like wrist size also increases, that will cause carpal tunnel syndrome, I will tell you later. और उनके हैंड के साइज, लाइक सी माई हैंड्स, इसका ऑलमोस्ट इतनी 2 फिंगर्स जितना उनका एक फिंगर होता है, स्पेड लाइक हैंड, मतलब फावड़े जैसा हाथ हो जाता है, वेरी वेरी बिग हैंड्स। एंड दे ऑल्सो हैव इंक्रीज इन फुट साइज। तो क्या होता है, देखो आपने बहुत बार आप शूज परचेज करने जाते होगे, आपने देखा होगा यार आपके शूज 8 नंबर के, तो 8 नंबर के आ रहे हैं, इवन यू आर 20 ईयर ओल्ड, इवन यू आर 35 ईयर ओल्ड, इवन यू आर 50 ईयर ओल्ड। बट दिस इज ए केस ऑफ एक्रोमेगेली इन विच बंदा जब 40 साल का, उसका पैर का साइज 8 नंबर का, और वो जब 50 का हो रहा है उसके पैर का साइज 9 नंबर का है, बिकॉज देर इज एक्रल ग्रोथ। ठीक है, और उसके ग्लव्स का साइज भी बढ़ रहा है। सो बोन हॉरिजॉन्टली मतलब थिकनेस में बढ़ेगी, देन यू विल फ्रंटल बॉसिंग आपको मिलेगी। और मैंने बताया बोन के अलावा सॉफ्ट टिश्यू भी बढ़ेगा, तो जैसे हील पैड की थिकनेस बढ़ेगी, हील मोटी मोटी हील्स हो जाएगी। अदर सॉफ्ट टिश्यू, जैसे आपके हाथ के अराउंड सॉफ्ट टिश्यू बढ़ेगा तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा।
अदर कॉजेज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम कोई चैट में बताएगा? कोई तो बताओ यार। अदर कॉजेज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? बॉडी में और अमाइलॉइड, बहुत बढ़िया अभिषेक, अमाइलॉइड, है ना। लेकिन क्या होता है कि मैं भी हमेशा अमाइलॉइड पहले आंसर बोलता था, हमेशा कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, बट वो पूरे हैंड में पेन कराएगा। हमेशा कॉमन चीजें पहले सोचो। जो आप देखो, आप मैंने अमाइलॉइड शायद एक देखा है, यूजुअली अमाइलॉइड मैंने नहीं देखा। तो कॉमन केसेस ध्यान रखो जहाँ सॉफ्ट टिश्यू बढ़ेगा। जैसे वन ऑफ द केसेस डायबिटीज, आई डोंट नो द कॉज, डायबिटीज इज द कॉमन कॉज। अदर जो जॉइंट को हैम्पर कर रहा है और जॉइंट डिफॉर्मिटी करा रहा है, यहाँ का जॉइंट ही खराब हो जाएगा, जेड हैंड हो जाएगा, तो यहाँ कार्पल टनल होएगा, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अनदर, जहाँ सॉफ्ट टिश्यू बढ़ता है, आप प्रेगनेंसी में पढ़ते हो, प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आ जाती है, पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है, वैसे यहाँ का सॉफ्ट टिश्यू भी बढ़ जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉजेज carpal tunnel. Hypothyroidism also causes carpal tunnel. So these are the causes of common causes of carpal tunnel. One of the which also is acromegaly, जिसमें soft tissue बढ़ जाता है। तो सॉफ्ट टिश्यू हाथों में बढ़ गया, बोन की थिकनेस बढ़ गई, सॉफ्ट टिश्यू कोलोन में बढ़ा है, तो देयर आर कोलोनिक पॉलिप्स एंड देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ कोलोन कैंसर, यू गो फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है। कोई बताएगा यार, व्हेन डू यू स्टार्ट स्क्रीनिंग, लाइक यू आर ऑल वेल एजुकेटेड पीपल्स एंड आपको घर में कोई बोलता है, एक बहुत ही कॉशियस बंदा है, वेल रेड बंदा है, और वो बोलता है यार आजकल कैंसर बहुत चल रहा है और मैं कैंसर से बचना चाहता हूँ, कोलोन कैंसर मैंने सुना बहुत कॉमन है, क्या कराऊं मैं उसके लिए और किस उम्र में कराऊं? सो लाइक वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम यू आस्क इज व्हेन डू यू स्टार्ट स्क्रीनिंग ऑफ कोलोन कैंसर? तो एनीबडी नो द आंसर कि कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं और कब करते हैं? देखो, कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग वी स्टार्ट एट द एज ऑफ, बहुत सही, कोलोनोस्कोपी से करते हैं। एट व्हाट एज अभिषेक? वी डू नॉट गो फॉर सीटी, यू आर राइट, वी गो फॉर कोलोनोस्कोपी। वी स्टार्ट एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है। No, even if there is no family history, now if family history we start at a early age like 20 to 30 years. But if there is no family history, in case of you and me, in our parents, we will go for colonoscopy at the age of 50 years, even if there is no family history. So these patients have increased sweating, coarse facial features, these and all, and इनका वेट बढ़ रहा होता है। जैसे आप खली का देखो, उसकी मस्कुलर साइज भी बढ़ेगा, क्योंकि सब कुछ बढ़ेगा। ग्रोथ हार्मोन मसल बढ़ाता है, तभी ग्रोथ हार्मोन इज नाउ फ्रिक्वेंटली कॉमन हार्मोन दैट इज अब्यूज्ड अमंग बॉडी बिल्डर्स बिकॉज इट इंक्रीजेज योर मसल्स। मसल का साइज बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ऊपर से अब क्या हो रहा है कि इस पेशेंट का बॉडी जो इसकी नेचुरली बनी थी, वो एक 60 किलो के वजन के अनुसार बननी थी, लेकिन इस पेशेंट में अब एक्सेस ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, मस्कुलर पोर्शन बढ़ रहा है, सॉफ्ट टिश्यू बढ़ रहा है, बोन बढ़ रहा है। नाउ अब उसकी नीज को 80 किलो वजन पड़ रहा है, सो ही विल सफर फ्रॉम प्री मेच्योर ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। और दे विल हैव सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ के कारण मैक्रोग्लोसिस, टंग विल बी इनलार्ज, आपने खली की आवाज सुनी होगी, दिस लाइक कोर्स वॉइस, सिमिलरली यू कैन हियर वॉइस ऑफ क्रिस बम्स्टेड, वो भी एक कोर्स वॉइस है। Now there will be pseudo gout. Pseudo gout. Anybody know the name of pseudo gout crystals? What those crystals are called, and either they are positively fringent or negatively birefringent. CPPD बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिषेक, यू आर राइट। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, दे आर पॉजिटिव क्रिस्टल। तो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पी आ रहा है, तो पी वाली चीज याद रखो, सीपीपीडी क्रिस्टल होंगे और पॉजिटिवली बायरेफ्रिंजेंट होंगे। गाउट के अंदर मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल होंगे, जो कि मतलब यूरिक एसिड, और दे विल बी नीडल शेप्ड क्रिस्टल, बिल्कुल सही एमएससी, ठीक है। दे विल बी नीडल शेप्ड एंड नेगेटिव, तो एनएन से याद रख सकते हो। तो ये आपको गाउट और सूडो गाउट का डिफरेंस याद रखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन पेशेंट में सूडो गाउट और अदर कॉजेज ऑफ सूडो गाउट आर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, hypophosphatemia, hypomagnesemia, hemochromatosis, and there is a case of acromegaly also. अब हाउ विल यू डायग्नोज द पेशेंट ऑफ एक्रोमेगेली? तो एक्रोमेगेली के अंदर
मैंने आपको बताया कि यार यू कैन नॉट जस्ट स्पॉट ऑन गेट हार्मोनल जीएच लेवल्स, है ना, क्योंकि आप सबने भी बताया कि यार टीएसएच हार्मोन आप रैंडम कभी भी करा लेते हो, बट यू डू नॉट गेट ए रैंडम ग्रोथ हार्मोन लेवल और ए रैंडम cortisol level, है ना. Prolactin level only we get random when we suspect hyperprolactinemia because they are raised most of the times. So you will get a hormone level that is a brother of growth hormone, but that remains stable in your blood. So वो हार्मोन कौन सा है? IGF-1. तो क्योंकि ग्रोथ हार्मोन लिवर को स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन खुद बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू पे जाके उनका साइज नहीं बढ़ाता. आप ग्रोथ हार्मोन या तो बाहर से लो या फिर आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है, एक्सेस रिलीज हो रहा है, तो वो लिवर को आईजीएफ लिवर पे जाता है, लिवर आईजीएफ-1 बनाता है और आईजीएफ-1 पूरी बॉडी में सारे इफेक्ट्स डालता है ग्रोथ हार्मोन के. कोई ऐसा एथलीट आप लोग, तुम में से फुटबॉल कौन खेलता है? डू एनीबडी प्ले फुटबॉल और सी फुटबॉल? ऐसा एथलीट बताओगे जिसमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी थी? ऐसे मत करो यार, पढ़ाई नहीं कर रहे तो स्पोर्ट्स तो देख लो, कुछ तो करो यार. थोड़ा सा ना हमेशा ट्राई टू लिंक मेडिसिन एवरीवेयर, है ना, आपको चीजें याद आसानी से रहेगी. वरना लेकिन सिर्फ बुक्स में ही मेडिसिन ढूंढते रहोगे ना, तो पेशेंट देखना कभी नहीं सीखोगे. तो लाइक इट विल बी ए बोरिंग एंड टायरिंग टास्क फॉर योर होल लाइफ. तो मेक मेडिसिन इंटरेस्टिंग. आपने अगर मेसी सुना हो, तो मेसी के अंदर चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी थी, एंड ही लाइक स्टिल यू कैन सी हिज हाइट इज लिटिल बिट शॉर्ट. To even to achieve that height na, his grandma struggled to get he had growth hormone deficiency, तो उनके regularly he got shots of growth hormone. That is how he was able to achieve even this height, otherwise he would not able to achieve that height also. सो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के अंदर सप्लीमेंट ग्रोथ हार्मोन, तो ये आपके जस्ट इंटरेस्ट के लिए आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी बातें. फिर आपने देखा IGF-1 लेवल्स बढ़े हुए हैं, नाउ व्हाट विल यू डू? तो देखो, बॉडी में कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाने का काम करते हैं, लाइक वो आपकी जान बचाने का काम करते हैं, बिकॉज लाइक इफ यू हैव हाइपोग्लाइसेमिया यू कैन डाई एनी टाइम. तो दीज आर द हार्मोन cortisol, your thyroid, and your growth hormone, और एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. ये आपके ब्लड में ग्लूकोज को लो नहीं होने देंगे, बिकॉज इंसुलिन इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हार्मोन. और यहाँ उसके लिए चार पांच हार्मोन चाहिए. यू नीड ग्लूकागॉन, यू नीड थायराइड, यू नीड कॉर्टिसोल, एंड यू नीड ग्रोथ हार्मोन. क्योंकि इंसुलिन इज लाइक सो पोटेंट, वो इतना रैपिड आपको शुगर डिक्लाइन करेगा, तो आपको पांच हार्मोन की जरूरत है जो कि शुगर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जिंदा रखने की कोशिश करते हैं. तो लाइक ये अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी है. जैसे आप 5 दिन खाना नहीं खाते तो बट आप मरते तो नहीं हो ना, ड्यू टू हाइपोग्लाइसेमिया. व्हाई? बिकॉज दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड रेजेस योर ब्लड शुगर लेवल्स. तो ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो वन अमंग वन ऑफ देम. तो होता क्या है, जैसे अगर आपकी शुगर लो हुई तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है, आपकी शुगर हाई हुई तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम होता है. तो नॉर्मल पेशेंट, मान लो मेरे में आप मेरे को 100 ग्राम ग्लूकोज खिलाते हो, तो आइडियली मेरा ग्रोथ हार्मोन लेवल जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बाहर से शुगर ले ली, मेरी ब्लड शुगर 130 आ गई, 120 आ गई, 110 आ गई. इट इज नॉर्मल, इट इज रेज्ड. Now there is no need of growth hormone. So ideally my GH level at that time after 2 hours of glucose tolerance should be zero. But even if it is one or more than one, that means your pituitary is not taking the commands properly. It is hypersecreting the growth hormone. Now you have acromegaly. So this is oral glucose tolerance test, simple test to use diagnose acromegaly. देखो, can anybody tell normally oral glucose tolerance test में कितना ग्राम ग्लूकोज यूज होता है? बताओ यार कोई तो. बहुत बढ़िया अभिषेक. दो ही जगह ऐसा है जहाँ 100 ग्राम ग्लूकोज यूज होता है. वन आई हैव टोल्ड यू इज एक्रोमिकली. दूसरा जगह बताओ जहाँ 100 ग्राम ग्लूकोज यूज होता है. आप सबने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बताओ बताओ प्लीज यार, ऐसे मत करो.
गायनी पढ़ी है आप लोगों ने, हिंट दे दिया मैंने, अब तो बता दूं। बहुत बढ़िया अभिषेक, थैंक यू। है ना, गेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, बहुत सिंपल सा सोचो, देखो मेरे में ग्लूकोज दे रहे हो तो आई एम वन पर्सन ओनली, तो मेरी बॉडी एक लिमिट शुगर खाएगी, और अगर मेरी बॉडी में इंटॉलरेंस है तो वो राइज हो जाएगी। इन ए प्रेग्नेंट फीमेल देयर आर टू बॉडीज दैट आर कंज्यूमिंग द शुगर। तो अगर आप 75 ग्राम से करोगे तो हमेशा उसका लेवल नॉर्मल ही आएगा, इवन दो शी इज ए गेस्टेशनल डायबिटीज। तो यू ऑलवेज ऑलवेज डू 100 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट टू कंफर्म योर डायग्नोसिस, बिकॉज दो बॉडीज हैं अभी जो कि ग्लूकोज रिसीव कर रही है। ठीक है, सो एंड अदर इज एक्रोमेगाली। तो आपने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा, तो अभी यहाँ वापस मेरे वाला फंडा लगाना है, हमेशा बायोकेमिकल टेस्ट फर्स्ट करने हैं, एमआरआई नहीं करानी, बाद में करानी है। अब आपने दो टेस्ट आगे आपने बोल दिया अरे इट इज ए केस ऑफ एक्रोमेगाली, प्रोलैक्टिन के सिम्टम लग रहे हैं, प्रोलैक्टिन करा लो, बिकॉज समटाइम अलोंग विद सोमेटोट्रॉप मेमोट्रॉप आल्सो इंक्रीजेस, so you can get prolactin level, doesn't matter whether they're normal or not. If IGF-1 and growth hormone suppression test is positive, then you will go for investigation of choice. Further, then will be the MRI brain, in which you will find a pituitary mass, macroadenoma that will be more than 1 centimeter, and that more than 1 centimeter mass may cause symptoms like visual defects, like headache, like vomiting. ठीक है, so this is the investigation protocol. Now the treatment is कोई बताएगा चैट में, हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं या सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं? फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज सर्जिकल, बिल्कुल सही भोमराज। यू ऑलवेज गो फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट, देन यू विल गो फॉर हार्मोनल ट्रीटमेंट, बिकॉज देखो वो मैंने एक कॉम्प्लिकेशन इसलिए नहीं बताई, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज ये देखो आपकी पूरी बॉडी में वेस्कुलरिटी बढ़ा रहा है, पूरी बॉडी का साइज बढ़ा रहा है, तो जो हर्ट पहले 60 किलो के बंदे को पंप कर रहा था, अब उसको 110 किलो के खली को पंप करना है, सेम हर्ट है, खली का सेम हर्ट है। So those patients will suffer from heart failure, and due to constantly raised sugar levels, they have accelerated atherosclerosis, causing early coronary artery disease. Later on, please do remember me. I will share a case of my residency with you. So these are the like feature of acromegaly, and the patient is suffering from many disease. So you will just go to the root cause of the disease. अब ट्यूमर को निकालो, काम को नक्की करो। You will go by a transsphenoidal approach. So how will you approach pituitary? अगर मैं एक एरो यहाँ से मार रहा हूँ और एक एरो मेरे नाक के ऊपर से मार रहा हूँ, एक एरो मेरे आंखों की साइड से मार रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट जहाँ मीट होंगे देयर इज सिचुएटेड माय पिट्यूटरी। तो जस्ट गो बाय ट्रांसफिनोइडल अप्रोच। आप यहाँ एक एंडोस्कोप से जाते हो, ट्रांसफिनोइडल अप्रोच, यू गो देयर, यू रिसेक्ट द पिट्यूटरी। ऑलवेज डू नॉट रिसेक्ट कंप्लीट पिट्यूटरी, आप हमेशा थोड़ा रेजिडुअल पिट्यूटरी छोड़ने की कोशिश कर दो, वरना जीवन भर यू हैव कन्वर्टेड ए पेशेंट ऑफ एक्रोमेगाली इनटू ए शीहन सिंड्रोम, है ना। तो आप हमेशा ऑलवेज ट्राई टू रिमूव ऑन द ट्यूमर पार्ट, नॉट द नॉर्मल पार्ट। प्री ऑपरेटिवली यू ट्राई टू सप्रेस इट विद ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर, जो कि सॉरी ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स को कम करता है, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स, दैट इज ऑक्ट्रियोटाइड एंड लेनिरोटाइड। और पोस्ट ऑपरेटिवली भी अगर लेवल बढ़ा है उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो यू विल गो फॉर पेगवीसोमेंट। पेगवीसोमेंट मतलब सोमैट मतलब सोमेटोट्रोपिन को रिजेंबल कर रहा है, मतलब जीएच को रिजेंबल कर रहा है, एंड इट इज आर्टिफिशियल हार्मोन दैट रिजेंबल दैट ग्रोथ हार्मोन, बाइंड टू दैट रिसेप्टर एंड इनहिबिट दैट रिसेप्टर। तो ये ग्रोथ हार्मोन का लेवल नहीं कम करते, अनलाइक ऑक्ट्रियोटाइड। ये ट्यूमर का साइज नहीं करते, कम करते, अनलाइक ऑक्ट्रियोटाइड। They just decrease the peripheral effects of growth hormone. They decrease the IGF-1 levels by decreasing the effect of growth hormone on liver. तो यू कैन यूज पेगविसोमेंट, और रेडियोथेरेपी इज लाइक द लास्ट चॉइस, बिकॉज आप जब भी रेडिएशन यूज करते हो कंप्लीट पिट्यूटरी डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और पूरी पिट्यूटरी डिस्ट्रॉयड होने के कारण पेशेंट विल कन्वर्ट इनटू शीहन सिंड्रोम। तो वो भी एक ट्रबलसम चीज है, उसको लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन लेना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग प्रेडनिसोलोन लेना पड़ेगा, और अगर उसने अपनी फैमिली प्लानिंग अभी अचीव नहीं करी है तो यू मे नीड ग्रोथ हार्मोन, सॉरी
गोनाडोट्रोपिन हॉर्मोन्स आल्सो। सो ऑलवेज आप हमेशा क्या करते हो कि फर्स्ट गो सर्जिकल, प्री ऑपरेटिवली आप उसका साइज कम करते हो, ट्रीटमेंट ऑफ चाहे सर्जिकल है रिसेक्शन करते हो, और पोस्ट ऑपरेटिवली यू कैन गिव ऑक्ट्यूटाइड और पेगविसुमेट। कैन एनीबडी टेल व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ ऑक्ट्यूटाइड? ये आपका क्वेश्चन आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई तो बताओ यार। द साइड इफेक्ट है सिंपली इतनी बात समझो, ये सारे गट के हार्मोन को इनिबिट करता है, तो ये कोलेसिस्टेकाइनिन को भी इनिबिट करता है, तो जो बाइल डक्ट का नॉर्मल मूवमेंट है वो नहीं हो पाता, तो इट विल कॉज रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट। एंड जब भी अपना जो बाइल डक्ट है उसका, सिलियरी डक्ट है उसका मूवमेंट रुक जाता है, इट विल कॉज एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। तो ऑक्ट्यूटॉइड स्टार्ट करने के बाद पेशेंट कोलेलिथेसिस, अभी यू आर नियर दैट अभिषेक, राइट आंसर इज कोलेसिस्टाइटिस। तो होता क्या है, पेशेंट बहुत बार ऑक्ट्यूटॉइड शुरू करे उसके बाद पेन एब्डोमेन लेके आ रहा है, तो ऑलवेज थिंक ऑफ एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। So this is the treatment. I hope it is clear to all of you. To conclude this, I will just share a case with you जिससे आपको सारे साइड इफेक्ट और अपना कॉजेज और मैनेजमेंट समझ आ जाएगा। तो हमारे पास एक पेशेंट आया था हार्ट फेलियर करके, and we just he had was having shortness of breath, mild chest pain, pedal edema. He was diabetic, he was hypertensive. So we controlled his heart failure with diuretic. Now we later, that was the patient in emergency, and in the after stabilizing him in the ward, हमने उसका फेस देखा, ही वॉज हैविंग फीचर्स ऑफ एक्रोमेगेली। तो आफ्टर इंक्वायरिंग हिम मच कि यार आपको और भी कोई दिक्कत है, नाउ ही वॉज हैविंग लाइक स्पेड लाइक हैंड्स, डबल द साइज ऑफ माई हैंड्स, and he was having a prognathism. So he told me that he has acromegaly. We saw his records, and so that patient was having like all complications of acromegaly. उसको इतने लंबे टाइम से ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ था, उसके कारण उसको एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, उसके कारण उसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हुआ, उसके कारण उसको डायबिटीज भी हो रहा था, क्योंकि शुगर लेवल कॉमनली थ्रू द डे रेज्ड उसके रहते थे। एंड इवेंचुअली ड्यू टू द इंक्रीज वेस्कुलरिटी एंड इंक्रीज साइज ऑफ द बॉडी, he eventually had heart failure, so his EF was only 35%. And to the shock of you and us, he had a coronary angiography that was totally clean. Why? Because इसका जो heart failure था, that was not due to the coronary artery blockage. The heart failure was because his heart was pumping for a bigger body. ठीक है, तो उसके कारण वो फाइनली पंप नहीं कर पा रहा था, फेल हो रहा था इवेंचुअली। जैसी बॉडी उसकी 10 साल पहले थी, उसकी बॉडी उससे डबल साइज में हो गई थी, दैट इज व्हाई हिज हार्ट वाज फेलिंग। सो इवन दो तो दैट पेशेंट डिड नॉट नीड एस्पिरिन, दैट पेशेंट ओनली नीड डायूरेटिक, ओनली नीड एंटीहाइपरटेंसिव। He was also having joint pain, he had osteoarthritis, we got his x-ray knee done, he had carpal tunnel syndrome due to this due to this acromegaly, he had macroglossia. So like that was a classical case in which we see all the complications of acromegaly. So now I hope just give me a thumbs up if up till now speed was fine. Now I will quickly let you go through all the, ठीक है यार, बढ़िया है। Now I will share the screen and show you the notes of today's lecture. अपने quickly उससे go through करेंगे और फिर अपने resume कर लेंगे। सो देखो यहाँ अपने सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो ये एक्रोमेगाली के लिए यू कैन सी द खलीज फेस, एंड दिस इज द एंड्रे द जायंट, एंड दिस इज खलीज फेस, दिस इज एंड्रे द जायंट। यू कैन सी हिज लार्ज जॉ, है ना, और ही द नेम इटसेल्फ इज जायंट। बहुत ही बड़ा इसका हाइट था बिकॉज ऑफ एक्रोमेगाली। एंड दिस इज क्लासिकल प्रोगनेथिज्म। आप इसका जॉ का साइज देख ले खली का, his jaw is significantly increased. He has left WWE also because of his health issues. Because like this looks so charming to you at once, but the patient is like literally very suffering. For Khali, he may say entertaining to all of you.
but the daily difficulties that he face are very very like difficult to go through because of his size and his daily problems. Their heart also becomes weakens. They have other complication, as I've told you. They have very severe joint pain. So they look very charming to you at once, but their daily life is very difficult. So always try to avoid mock these persons. Do not make fun of those heights. So pituitary adenoma is like one is microadenoma when there is 1 centimeter size से कम होगा, macro is more than 1 centimeter. हार्मोनल एक्सेस होगा, यूजुअली यहाँ कोई पेन हाइपोपिट्यूडिज्म या मास इफेक्ट नहीं होगा जैसे कुशिंग डिजीज, लेकिन मैक्रोएडिनोमा में हार्मोन एक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मास इफेक्ट जैसे विजन लॉस, हेडेक, ये सब होगा, और पेन हाइपोपिट्यूडिज्म हो भी सकता है क्योंकि वो नॉर्मल टिश्यू को पूरा कंप्रेस कर देता है। नाउ वी विल कम टू एक्रोमेगाली। हमेशा अपने पहले सिनेरियो डिस्कस करेंगे, उसके बाद सारे पॉइंट कॉज, डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम, ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। तो देखो 50 ईयर मेल आ रहा है हेडेक के साथ, ये मास सिम्टम है, स्वेटिंग, जनरलाइज वीकनेस एंड वर्सन ओवर 3 मंथ्स, ग्लो एंड रिंग एंड शू साइज इंक्रीजेस क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है, लिबिडो कम हो रहा है, सेक्सुअल डिजायर कम हो रही है क्योंकि प्रोलैक्टिन बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन, वो 10 डॉक्टरों के पास जा चुका है, उसका बीपी ठीक नहीं हो रहा, कोर्स फेशियल फीचर्स है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, जो का प्रोड्यूसन है, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़े है बिकॉज ऑफ इंक्रीज हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो डायग्नोसिस क्या हुआ एक्रोमेगाली। फर्स्ट टेस्ट क्या कराओगे, IGF-1 लेवल, प्लीज 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 मेरे स्टूडेंट होके डू नॉट आंसर ग्रोथ हार्मोन लेवल्स। फर्स्ट टेस्ट इज IGF-1 लेवल। ग्रोथ हार्मोन इज पल्सेटाइल हार्मोन। पल्सेटाइल हार्मोन ऐसा कौन सा हार्मोन है पिट्यूटरी का जो पल्सेटाइल नहीं है? द आंसर इज योर थायराइड हार्मोन। तो इसलिए आप वो 24 घंटे कभी भी करा लेते हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू कंफर्म इस ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट, वाइब्रो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। कितना यूज करोगे? 100 ग्राम यूज करोगे। और कहाँ 100 ग्राम यूज करते हो? रेसिस्टेंट डायबिटीज के डायग्नोसिस में। अगर लैब टेस्ट यू कैन गेट प्रोलैक्टिन लेवल। MRI कब कराओगे? जब बायोकेमिकली कंफर्म कर लोगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर, मैंने आपको बताया मेरे पेशेंट में था, हाइपरटेंशन भी था, डायबिटीज भी था, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी था। बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या था? सर्जिकल रिमूवल इज ट्रीटमेंट। ठीक है, यूट्यूब चैनल को जितने लोग हो सके सब्सक्राइब और वो सब कर देना। ठीक है, नाउ मोस्ट कॉमन कॉजेज पिट्यूटरी एंड मैक्रोएडिनोमा इटसेल्फ। अदर कॉमन कॉजेज नॉट सो कॉमन दैट यू शुड रिमेंबर इज एक्टोपिक ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन और पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, पेनक्रेटिक एडिनोमा, सॉरी, एक्टोपिक मतलब बाहर से ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज पेनक्रेटिक ट्यूमर, आइलेट ट्यूमर। अदर अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल नहीं बढ़ रहा लेकिन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है तो भी वो ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ाएंगे, दैट इज कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड में सेरोटोनिन ज्यादा होता है तो हर जगह नासों को खोल देगा, विजुअलाइजेशन करेगा, उसके कारण फ्लशिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होएगा, डायरिया होएगा। ठीक है, एक फ्लशिंग का मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ठीक है, कभी कभार ऐसा फोटो आपको दे सकते हैं। यू कैन सी दिस मैन, है ना, देखो इसकी पूरी बॉडी पे रेडनेस रेडनेस हो रखा है। ठीक है, ये किसके कारण है? ये ड्यू टू फ्लशिंग, ड्यू टू सेरोटोनिन के कारण है। तो इसमें फ्लशिंग होएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होएगा, डायरिया होगा। ठीक है, ब्रोंकियल भी हो सकता है लेकिन कॉमनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। ट्रीटमेंट में क्या दोगे? सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, ऑक्ट्यूटाइड। ऑक्ट्यूटाइड का साइड इफेक्ट क्या है? कोलेसिस्टाइटिस, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है, जिलास्टिक सीजर क्या होता है? लाफिंग सीजर होते हैं, हाइपोथैलेमिक हमार्टोमा में मिलते हैं। ठीक है, फिर साइन एंड सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशन। एवरीथिंग enlarges, even organs, even body parts and even soft tissue। ठीक है, तो हाथों का एनलार्जमेंट होगा, पैरों का एनलार्जमेंट होगा, जॉ का एनलार्जमेंट होगा क्योंकि मेटाफाइसिस बंद हो चुकी है तो बॉडी हॉरिजॉन्टली मतलब थिकनेस में ग्रो करेगी। फ्रंटल वॉशिंग होगी, हील पैड की थिकनेस बढ़ेगी, डीप वॉइस होगी। आप जाके आज खली का इंटरव्यू देखना, क्रिस बमस्टेड का देखना, टंग एनलार्जमेंट होगा, स्वेटिंग बढ़ेंगे, हर जगह सॉफ्ट टिश्यू बढ़ रहा है तो स्किन पे छोटे छोटे मस्से हो जाएंगे। एक्यांथोसिस नाइग्रिगेंस ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे नेप ऑफ द नेक पे देखते हैं हमेशा एक्यांथोसिस नाइग्रिगेंस, ये हो जाएगा। तो ये देखो, ये क्रिस बमस्टेड है, मतलब वन ऑफ मेरा भी बहुत फेवरेट बॉडी बिल्डर है। सी लाइक हाउ स्मार्ट हिज फेस इज, सी द जॉ लाइन, सी द मसल्स, ही लाइक हैड गुड मसल टू बिगिन विद, बट दिस इज लाइक ही हैज बीन मिस्टर ओलंपिया अराउंड 5 टाइम्स। तो आप इसका भी जॉ को ध्यान से देखिए, इस जॉ लाइक थिकनेस हैज इंक्रीज, और इसका जो लिप्स का आप देखो एरिया भी, थिकनेस बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया है, और आप इसके इंटरव्यू देखोगे you can clearly guess macroglosia from the interviews itself।
ठीक है. Now this is other condition with acanthosis nigricans are diabetes, are acromegaly और PCOD में भी क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, CA pancreas, CA stomach. These are the other causes of acanthosis nigricans. These are the spade-like hands. You can see his large fingers in acromegaly, unlike normal patients. फावड़े जैसे हाथ बोल जाते हैं इसमें. अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस होएगा इसमें, क्योंकि वेट बढ़ रहा है, बोन भी बढ़ रही है और उसी बोन को ज़्यादा वेट बियर करना है. उसमें एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, कॉन्स्टेंटली शुगर ज़्यादा रह रही है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकता है. ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल बढ़ेगा. ये मैंने कुछ आपको बता रखे हैं जनरल फंडे की, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ये सब और ग्लूकागोन, ये सब शुगर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपकी जान बचाने की कोशिश करते हैं. इंसुलिन क्या होता है, शुगर आपकी कम करने की कोशिश करता है. तो देखो इंसुलिन इज सो पोटेंट हार्मोन कि इसके लिए 5 हार्मोन इसके अगेंस्ट चाहिए. इसीलिए लाइक बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन, क्योंकि ये सेल के अंदर शुगर पुश करता है तो सेल की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है, उनके सबस्ट्रेट के यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है. तो इंसुलिन बॉडी बिल्डर्स के द्वारा मोस्ट कॉमनली अब्यूज ड्रग है. एंड बॉडी बिल्डर्स में ऑफ रिकॉर्ड ये सबसे कॉमनली यूज होता है और सबसे ज़्यादा डेथ बॉडी बिल्डर्स में इंसुलिन के यूज़ के कारण ही हो रही है. नॉन डायबिटिक बंदे उसमें इंसुलिन लेते हैं. डायबिटीज़ में इंसुलिन इज लाइफ सेविंग, बट इन नॉन डायबिटिक इट इज़ वेरी थ्रेटनिंग. सॉफ्ट टिश्यू बढ़ेगा तो मैक्रोग्लोसिया होगा. ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मेरे वाले पेशेंट में था, मैक्रोग्लोसिया था. खलीयोपेस स्टेट के आप जरूर आ जाके इंटरव्यू देखना. फिर इंक्रीज कोलोनिक पोलिप्स एंड इंक्रीज कोलोन कार्सिनोमा और कार्पल टनल सिंड्रोम का जहाँ सॉफ्ट टिश्यू डायबिटीज में, लेकिन प्रेगनेंसी में बढ़ेगा. थायराइड में भी क्या होता है, बंदा सूज जाता है. एक्रोमेगेली, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो जॉइंट डिस्ट्रक्शन होगा, इसलिए अमाइलोइडोसिस में बाहर का डिपोजिशन हो रहा है इसलिए. फिर सूडो गाउट में क्या होगा, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस क्रिस्टल्स बढ़ जाएंगे. तो ये देखो रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल होंगे या नीडल शेप क्रिस्टल होंगे और यहाँ पॉजिटिवली बायरेफ्रेंजेंट. Other causes of pseudoitis, hyperparathyroidism, hypophosphatemia, hypomagnesemia, hemochromatosis. These are the causes. Why don't you see gigantism so much? क्योंकि देखो इसमें हाइट देखो, अब इन्हीं का भी इतना सा दिल है और इसका भी दिल इतना सा है, लेकिन अब इस बंदे को, इसमें तो दिल को इतना, ये जो ऊपर पंप करता है वही अल्टीमेटली नीचे आता है और वापस इतना प्रेशर होना चाहिए ऊपर से फेंकने में कि वो वापस ऊपर आ पाए. ठीक है. अब इस वाले हर्ट को देखो, इतना नीचे तक इतना प्रेशर करना है कि नीचे जाके अब वापस ऊपर भी आ पाए. तो इवेंचुअली ये हर्ट गिव इन कर जाएगा कि साहब अब मेरे से काम नहीं हो रहा, बहुत आत्मा निकल रही है, 10 फुट के 8 फुट के बंदे में मैं नहीं कर सकता. इवेंचुअली दिस पेशेंट unfortunately died due to high output cardiac failure. That is why you see very rare cases of these in the general public. स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए क्या कराओगे, IGF-1 लेवल, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या, ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट वाया ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. 2 घंटे बाद लेवल 0 मिलना चाहिए, लेकिन 1 नैनोग्राम से ज़्यादा इट इज डायग्नोसिस एक्रोमेगाली. ये देखो यहाँ से ग्रोथ हार्मोन निकलता है और लिवर को IGF-1 स्टिमुलेट करने के लिए बोलते हैं और IGF-1 बोन पे, मसल पे और सॉफ्ट टिश्यू पे काम करता है. ठीक है. अगर अब टेस्ट पॉजिटिव है तो एमआरआई ब्रेन कराओ, या आप एमआरआई ब्रेन में पिट्यूटरी का एनलार्जमेंट देख सकते हो. सस्ता टेस्ट पेरीफेरी पे कराना है, हील पैड थिकनेस देख लो. यहाँ देखो सिर्फ 1.4 सेंटीमीटर की या 2.7 सेंटीमीटर, मतलब 23 mm से ज़्यादा है. तो इट इज इंक्रीज सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ लाइकली ड्यू टू मैक्रो एडिनोमा, ड्यू टू अपना क्या बोलते हैं इसको यार, एक्रोमेगाली. फिर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस, ट्रांसफिनोइडल सर्जिकल रिसेक्शन आप कर सकते हो. पिट्यूटरी ग्लैंड को आप देखो, नोज से गए और नोज से जाके पिट्यूटरी को रिसेक्ट कर लो. ऑक्यूटाइड प्री ऑपरेटिवली दोगे साइज को कम करने के लिए, पोस्ट ऑपरेटिवली फेग्लिसोमेट दे सकते हो. लास्ट चॉइस रेडियोथेरेपी, क्योंकि पैन हाइपोपिट्यूटिज्म हो जाता है. सो आई होप यार कि आपको कुछ बेटर क्लियर हुआ. ठीक है. मैंने कोशिश करा था कि यार जितना शॉर्ट एंड स्वीट आपको बता दूं. ठीक है. सो टुडेज लेक्चर इज कंक्लूडेड. ठीक है. आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, देन यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस. So good night everyone. Yeah, take care. If any doubt, do feel free to message me anytime. Bye.